students, welcome to Skylark English School online learning program. We have started already with the lesson number 4, that is mean by simple equations. So first I have taught you about how the statement is converted into an equation or an equation converted into a statement. Now we are going to solve an equation. If the equation is given, there are two sides, left hand side and right hand side, and there is a equality sign between it. So is that statement satisfies the equality equation? That first we will check. See, let's consider one example. 8 minus 3 is equal to 4 plus 1. So how will you solve this? See, this and this answer should be same, then only you can give the equality sign. So first we will check 8 minus 3. What is the answer? 5. And 4 plus 1, 5. Yes, so both the sides, left hand side and right hand side, if both the sides are equal, then only your equality there is a what we say, the equality must it holds the equality, both the sides holds the equality. Same we can consider with the variable. If we take one example, okay, I will tell here only. If we add number 2 on both sides, 8 minus 3 plus 2 is equal to 4 plus 1 plus 2, then also there the answer will be same, because 5 plus 2 7 and 4 plus 2 6 4 plus 2 sorry 5 plus 2 yes 7, 5 plus 2 7. So then also the answer will be same. If we subtract 2, then also, but whatever you are doing you have to do on the both sides. If we take it as 8 minus 3 plus 2 only on one side, and here only 4 plus 1, then here the answer is 7 and here the answer is 5. So this equality does not hold. Okay, so whatever the equation you have to solve, the left hand side must be equal to right hand side, then only your equation will be satisfied. So now I will show you how to solve the equation having the variable. So first I will take x plus 3 is equal to 8. Okay, so here is a one variable and these are the numbers. Okay, so we have to find the value of x. तो आपको क्या करना है, x के साथ जो भी नंबर आया है उसको अगर आपने कट करवा दिया, यानी सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड साइड में x चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैन यू सी दिस x प्लस 3? हाँ, तो आपको अगर ये 3 नहीं चाहिए, यानी आपको यहाँ पे 0 चाहिए, प्लस है, सो x प्लस 0 x ही आता है, इसीलिए अगर मुझे ये वैल्यू 0 चाहिए तो मुझे प्लस 3 में क्या करना चाहिए? -3 करना पड़ेगा. लेकिन ये -3 जो है वो सिर्फ वन साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड, वो मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा. सो व्हाट विल वी डू? सब्ट्रैक्ट. हमें ये लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट. ये आपको स्टेप्स भूलनी नहीं है. दिस स्टेप्स आर हैविंग द मार्क, सो यू हैव टू राइट दिस. सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी आपने क्या किया वो समझ में आना चाहिए. सो x प्लस 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3. दोनों तरफ हमने सब्ट्रैक्ट किया 3 को, तो अभी ये प्लस 3 माइनस 3 क्या हुआ? 0 हो गया, तो यहाँ पे बच गया x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 का आंसर आया 5. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 5. अगर हमने यहाँ पे डाल के देखा x प्लस 3 में 5 की वैल्यू 5, x की वैल्यू आई 5, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8. Now can you verify this? That 8 left hand side is equal to right hand side. Okay, so these two answers are satisfied. So this is how you have to solve this equation. Okay, ये छोटा simple equation दिया था, तो ऐसे ही आपको थोड़े से बड़े equations भी आ जाएंगे जो आपको solve करने हैं. Okay, now I proceed with the next example as m upon 2 इज इक्वल टू 5. तो यहाँ पे आपको सिर्फ m चाहिए. ओके, तो यहाँ पे अगर हमने m जो है m को डिवाइड बाय 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? m की सिर्फ m रहना है, तो m
के साथ मल्टीप्लाई बाय 1 आया तो ही होगा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगी तो उसका जो उसके एडिटिविटी आपको मालूम है क्या है, यस 1 आना चाहिए। तो m 1 की कब आएगा, जब आप उसको ये जो m डिवाइड बाय है उसको मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको क्या याद रखना है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे मल्टीप्लाई उसी नंबर से करना है, जहाँ पे मल्टीप्लाई है उसी नंबर को डिवाइड करना है। सो यहाँ पे m को डिवाइड बाय 2 है तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट विल यू राइट, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड्स। सो m अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, सो यहाँ पे क्या आया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी m 1 जा m मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, m मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको नंबर आना चाहिए 1। ओके, प्लस माइनस होगा तो ये 0 आना चाहिए आंसर। 5 2 जा 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m 10। अगर हमने यहाँ पे डाल के देखा m अपॉन 2 में तो कितना आएगा, m कितना आया 10, 10 डिवाइड बाय 2 कितना आया आंसर 5। yes, so left hand side is equal to right hand side, this equation verifies your answer. Okay, like this you have to solve the equations. अभी हम अलग तरीके का इक्वेशन लेंगे जो कि है 3n प्लस 7 इज इक्वल टू 25। ओके, ये थोड़ा अलग लिया है, जहाँ पे हमें दो दो वैल्यूज़ है उसको आपको नील करवाना है, यानी आपको क्या करना है, सिर्फ n यहाँ पे रहना चाहिए। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस वाला जो नंबर है वो निकाल देंगे, फिर उसके बाद n के साथ जो नंबर है वो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो उसको निकाल देंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, 7 को निकालना है। तो 7 क्या है, प्लस है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड्स, ये आपको लिखना है स्टेप। इसीलिए क्या करेंगे, 3n प्लस 7 है उसमें हम माइनस 7 करेंगे, जहाँ पे हमने लिखा है सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 7, इसीलिए प्लस ये जो है वो एज इट इज़ लिखना है, उसमें से माइनस 7, उसके बाद 25 माइनस 7, तो ये 7 7 0 हो गया, बच गया 3n। 3n इज इक्वल टू 25 में से 7 गए, कितने बचते हैं 18। ओके, नाउ अभी n के साथ क्या बचा है 3, तो 3n इसका ही मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय n, 3n का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय n। तो अभी आपको उसका आंसर n निकालने के लिए ये 3 को हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है यानी n मल्टीप्लाई बाय 1 n आता है, इसीलिए हमें क्या करना है, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उसे डिवाइड करना है। तो हम क्या बोलेंगे, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड्स, यानी हमें क्या करना है, 3 नंबर को दोनों साइड से डिवाइड करना ऑन बोथ साइड्स। सो 3n डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 3। ये भूलना नहीं है, दोनों तरफ सेम ही ऑपरेशन करना है आपको, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ही नहीं। सो 3 1 जा 3, 1 आ गया, n मल्टीप्लाई बाय 1 n आता है। अब ये 3 के टेबल में 18 कब आएगा, 3 6 जा 8, सो n वैल्यू क्या आई, n इज इक्वल टू 6। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही आया है क्या, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे वेरिएबल है उसमें वेरिएबल का आंसर हमें डाल के देखना है। तो सपोज हमने क्या किया, ये 3n प्लस 7 है, हमारा n कितना आया है 6 आया है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7 करके देखो, 6 3 जा 18, 18 प्लस 7 25, यानी यस तुम्हारा आंसर सही आया। अगर ये आंसर आपका गलत है, यानी आपका यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो गलत हुआ है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। सो व्हेन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू वेरीफाइज, योर आंसर विल बी करेक्ट। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज 4.2। मैं हर एक क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल आपको फटाफट सॉल्व करके बताती हूँ। 4.2 दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। सिर्फ फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है वो आपको वहाँ पे लिखना है। गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। आपको क्या करना है, स्टेप 1 जो है वो लिखनी है, आप क्या करने वाले हो,
देन यू हैव टू, तो मैं उसमें से एक एग्जाम्पल लेती हूँ ई वाला 4.2 क्वेश्चन 1 का ई. ओके, दैट इज y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7. ओके, सो y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7. तो आपको y के साथ क्या नंबर है उसको निकाल लेना है. तो यहाँ पे माइनस 4 है, तो इसकी वैल्यू मुझे ज़ीरो करनी है. तो माइनस 4 में प्लस 4 किया तो वो वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड. यहाँ पे ऐड बोलना है, ऐड 4 ऑन बोथ साइड्स. ये है तुम्हारी फर्स्ट स्टेप. ये उन्होंने पूछी है कि फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, 4 ऑन बोथ साइड्स. ओके, तो ये है तुम्हारी स्टेप 1. ये आपको बोलना है स्टेप 1. सो y माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4. दोनों तरफ प्लस 4 लिखना है, यहाँ पे भूल नहीं जाना है. 4 4 गए, 0 आया. सो y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 4. ये आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है. माइनस, ये दोनों साइंस अलग अलग है, यानी सब्ट्रैक्शन होगी, नंबर की सब्ट्रैक्शन करनी है. 7 में से 4 गए 3, और साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, यहाँ पे 7 और 4 में 7 बड़ा है तो उसकी साइन माइनस है, इसीलिए माइनस है. ओके, सो y इज इक्वल टू माइनस 3. इस ऐसे ही आपको सभी इक्वेशन सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में एक सॉल्व करके बताती हूँ. क्वेश्चन 2, लेट्स टेक जी वाला सॉल्व करके बताती हूँ. दैट इज a डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 7 अपॉन 50. तो यहाँ पे आपको a के साथ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है. तो ये 5 कट करने के लिए जो डिवाइड नंबर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स. दिस यू हैव टू राइट. ओके, इसीलिए a डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. अभी इस तरफ भी वही करना है, 7 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, 5 1 ज़ा 5, a मल्टीप्लाई बाय 1 a हो गया. उसके बाद 5 और 15 दोनों एक ही टेबल में आते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 हो गया, और ये 3, यानी आपका आंसर a का हो गया 7/3. यही वैल्यू आप इसमें डाल के देख सकते हो कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है. ओके, उन्होंने क्वेश्चन क्या है उसमें भी फर्स्ट स्टेप क्या है बोल के आपको इक्वेशन सॉल्व करना है. उसके बाद है क्वेश्चन 3, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. सेम है क्वेश्चन 3. इसमें भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं लूँगी एक एग्जाम्पल एज 20p डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 40. अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 20 डिवाइड बाय 3 है p के साथ. तो आपको क्या करना है, पहले 3 को पहले बाजू भेजना है, क्योंकि ये डिवाइड बाय है. तो आपको क्या बोलना है, मल्टीप्लाई. यहाँ पे 2 स्टेप आने वाले हैं, इसलिए दोनों स्टेप लिखने हैं. मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स. सो 20p डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 3 1 हो गया. अभी यहाँ पे रह गया 20p, तो 20p इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 3. वो कैसे करना है, 4 3 ज़ा 12 और ये 0. अभी यहाँ पे 20 है p के साथ, उसको निकाल लेना है. तो p मल्टीप्लाई बाय 20 होता है, तो हमें डिवाइड करना है. डिवाइड 20 ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पे ऊपर लेती हूँ मैं. हाँ, तो क्या करना है, 20p डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 20. ओके, 21 ज़ा 20 हो गया, तो p बच गया इज इक्वल टू, ये 0 गए. जब डिवीजन होती है तो अगर एक 0 है तो एक एक 0 कट होते हैं. अभी 12 डिवाइड बाय 2, 2 के टेबल में 12 कब आता है, 2 6 ज़ा 12. सो योर p इज इक्वल टू 6. लाइक दिस यू हैव टू पहले आपको समझ में आने के लिए पॉज करो वीडियो और फिर अच्छे से देखो एंड देन सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.2. Here we are going to end up the session. So goodbye.